You're watching Beyond the Headline. I'm Tamanna Inamdar. It's been barely 24 hours since Nitish Kumar pulled the rug from under the BJP. He took oath as Chief Minister for a record 8th time, but 24 hours is a long time in Indian politics. Already the buzz has begun on whether Nitish has set his eyes on the Delhi prize. In the typical politician style, Nitish denied it when asked, but didn't forget to throw in a pot shot at Prime Minister Modi. Listen in. ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। लेकिन लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। So Nitish is not the only one who is or isn't talking about this. Several others across opposition ranks have found new hope in Nitish's latest U-turn, ranging from Tejasvi Yadav, JDU leader Upendra Kushwaha, Majid Memon from the NCP, and former Prime Minister H.D. Devagowda are all talking about this. But can Nitish really be the answer the opposition is looking for? What's going for him is that he has 15 years of a governance track record in a large state like Bihar. His image is relatively clean and he has stayed away from the politics of polarization. Some may argue that Nitish has more pan-India appeal than, for example, a Mamata Banerjee, and a wider appeal within the opposition ranks than, for example, an Arvind Kejriwal. So these are some of the reasons why maybe today there is so much buzz about Nitish as a possible PM candidate in 2024. But it's not all going to be easy. Of course, the moniker of Paltu Ram will be a challenge. The biggest challenge, though, for any prime ministerial aspirant over the last two elections from the opposition is the number of contenders. And here, too, there is no dearth of contenders. The other question is, while Modi had a Gujarat model to take to the country as a plank in 2024, can Nitish boast of a similar Bihar model? Now, while Bihar is a crucial political state in the Hindi belt with 40 Lok Sabha seats, it's been known for poor economic indicators. So, you know, when we talk about Nitish's model, we have to look at how Bihar is done, because Bihar has been under him for the last 15 years. So, good or bad, it's all him. He has done relatively better than his predecessors, but the GSDP of Bihar grew by just 2.5% in 2020-21 versus India's 7.5%. There's no doubt it's still one of the poorer states in this country. Unemployment is a big issue. It's very high in Bihar at 18.8% versus the national average of about 7%. It's one of the poorest Indian states as per Niti Aayog data, with relatively low literacy rates and one of the lowest per capita incomes as well. Will all of this matter for national voters is one of the questions. But as we get into that discussion, I want to speak first today with my celebrity guest, I would say, but also politician, astute politician. He is TMC leader and Lok Sabha MP from Asansol, the Shotgun himself, Shatrughan Sinha. Thank you so much, Mr. Sinha, for speaking with us today on the show. Great to speak with you. I want to ask you how you see the last 24 hours and everything that has unfolded. Now, they're saying Nitish is Paltu Ram, opportunistic. Do you think this is going to impact the opposition's image overall? You allow me to rephrase your question. If you allow me, then I would say that today those who are shouting hoarse, today they are criticizing or condemning or abusing our own JDU and RJD. It's like grapes are sour. They have not fulfilled one promise given to Nitish Kumar or his party or his people. Neither one, all turned into jumlas. They have promised to give Bihar 175,000 crores worth package. They also promised a special package to Bihar. कुछ नहीं किया उन्होंने. Very recently, the leaders of the Bharatiya Janata Party are friends. They came to Patna
and with the great show of strength and money power, they announce over here that BJP will be the only party left in the country और क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेंगी, विपक्षी पार्टियां नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी. What kind of situation, what kind of lollipop, what kind of things are you saying or telling people over here? इनको डरा रहे थे, आप घबराने की बात कर रहे थे. I think Nitish Kumar has taken a very bold and beautiful decision, right decision, at the right time, in the right direction. So the people who are talking against him today, they are talking out of their sheer desperation, frustration, and of course their anger. Okay, they are not talking, I hope, wish and pray that good sense prevails upon them. Today they went out for pradarshan. 100 आदमी नहीं आया देखने के लिए उनको. I assure you, Tamanna, with due respect to all, today in Bihar, by and large people are very happy. बहुत खुश हैं इस बदलाव से, इस चेंज से. And these things hardly matters कि किसने किसको क्या बोला, उसने उसको बोला और उसने उसको बोला, पलटू and this and that, सगा and ठगा. अरे सगा ठगा जब आपके साथ था तो सगा था जी, और भारतीय जनता पार्टी से आज अलग हो गए तो अचानक ठगा हो गए, ठग हो गए. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैड कॉल्ड, was asking for the DNA of Nitish Kumar. You remember? Our Nitish Kumar had himself called Bharatiya Janata Party a बड़का झूठा party. You know, Sushil Modi himself had literally, our friend Sushil Modi had literally abused Nitish Kumar. Nitish Kumar also might have reacted. तो ये सब बातें पॉलिटिक्स में अब नहीं चलती हैं. I came into politics under the social obligation inspired by Jayaprakash Narayan ji, but I came into the healthy politics. But today when I see all around, सब लगता है हमाम में सब नंगे हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है और आज की राजनीति में ये कोई बुरी बात भी नहीं है. ओके, बड़ी बात भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है. तो आज नीतीश जी का एक डायलॉग था, हमने पहले चलवाया शो में. उन्होंने कहा कि 2014 में जो जीते हैं वो 2024 में रहेंगे, वो समझे. आप इसको कैसे डिसाइफर करते हैं? हाउ डू यू रीड बिटवीन द लाइंस? देखिए, जो राजनीति में कल थे वो आज नहीं है और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे. परिवर्तन तो नियम है जीवन का, ये तो होता रहा है. जाहिर है कि आज मान लीजिए अगर मैं जिस तरह से आज लैंडस्लाइड विक्ट्री मैंने टीएमसी में ममता बनर्जी के निर्देशन में, उनके लीडरशिप में हमने आसनसोल से हासिल की. थैंक्स टू ममता बनर्जी, टीएमसी और लीडर और ऑल्सो पीपल ऑफ आसनसोल. थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी जाता है कि 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत कर आए जी. बट ये कह सकता हूं मैं 10 साल बाद भी इतनी 3 लाख से जीत के आऊंगा. हो सकता है उस समय 13 लाख से जीत के आऊं, हो सकता है उस समय 1 लाख से जीत के आऊं, हो सकता है जीत के ना भी आऊं. तो ये तो परिवर्तन है, जीवन का नियम है, परिवर्तन है. उन्होंने कहा 14 में जो लोग थे, जाहिर है कि शायद हो सकता है 24 में ना हो, या उनका वो स्ट्रेंथ ना हो, वो पॉपुलरिटी ना हो, वो पोजीशन ना हो, वो उनका वो जलवा नहीं हो. ये भी हम लोग क्यों मतलब निकाल रहे हैं दूसरा? अभी नई सरकार का गठन हुआ है. बाय एंड लार्ज एज आई सेड पीपल आर वेरी हैप्पी. तो थोड़ा मौका दो, देखो उनको. नीतीश कुमार इज ए वेरी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन. वो पूरे देश में चंद मिनिस्टर्स में से हैं, चीफ मिनिस्टर्स में, जिनकी बेदाग छवि है और जिनका डायनेस्टी से भी कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसे आदमी की तो सराहना करो. तेजस्वी पहले से काफी बढ़िया हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है. तेजस्वी के अंदर बहुत समझदारी आई है, बहुत उसके अंदर बहुत एक विजडम आया है जो उसने दिखाया है, अभी प्रूव किया है. तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है, ये काम करेगा और ये कॉम्बिनेशन इज हियर टू स्टे यहाँ पे पूरा. अब इसके बाद जो है, एंड वन मोर थिंग आपको, वन मोर थिंग कि पहली बार हुआ है बिहार में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया परहैप्स कि ऑल द 164 पीपल हैव जॉइंड हैंड्स विद नीतीश कुमार. ऑल द 164 पीपल. अकेला बीजेपी अलग थलग हो गया है. अकेला हमारी बीजेपी फैमिली जो है एक तरफ है और वहां सारे ऑपोजिशन मिल गए हैं नीतीश के साथ और तेजस्वी के साथ. इसका मतलब है
कि देश में भी एक नई जागृति का संचार हुआ है और अब लोग सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि कैसे सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग कर सकते हैं जो मोदी है तो मुमकिन है का नारा बदल सकते हैं कि मोदी है तो नामुमकिन है। ये नारा कौन बदलेगा सर? ये विकल्प कौन है? अगर आपको ये नारा बदलना है, इफ यू वांट टू चेंज द मोदी है तो मुमकिन है नारा, तो ये कौन बदलेगा? नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, कौन है विकल्प आपके मुताबिक? देखिए, विकल्प पहले किसी ने सोचा था क्या कि मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री देश के? अब ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर इंदिरा हु, और मौका आता है तो विकल्प अपने आप सामने आ जाता है, देश की जनता लेकर आ जाती है। आपने मोदी जी के पहले अब सुना था ना, और मोदी जी के वक्त में भी कुछ और लोगों की बातें चल रही थी, बट द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हम लोगों ने मोदी जी को उस वक्त में कि गाड़ी के पीछे लोगों को दौड़ा रहे हैं, भाषण के बीच में लोगों से कह रहे हैं चिल्लाओ, बीच में कंडक्टर कह रहा है कि हाँ मोदी मोदी मोदी, एक बिल्डअप दिया गया। यू अंडरस्टैंड, आप बहुत अच्छे से समझती हैं कि बिल्डअप कैसे होता है। बिल्डअप दिया गया, यूफोरिया क्रिएट किया गया, करवाया गया। तो ऐसे भी अभी फ्रंट लाइन में लोग आ चुके हैं। आप देखिए, चाहे राहुल गांधी हो जिनकी लार्जेस्ट पार्टी है, और ही इज डूइंग क्वाइट वेल ऑल्सो, अभी इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डिसीजन लेके राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेके नीतीश कुमार ने पूरे देश को, भारतीय जनता पार्टी को तो शॉक थेरेपी में डाल दिया है, शॉक ट्रीटमेंट में, और बाकी लोगों को चौंका दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, ये पॉसिबल है। और दूसरी बात, जैसे हमने कही कि इतने एलाई छोड़ छोड़ के रूलिंग पार्टी के जा रहे हैं और भी नीतीश बाबू भी गए हैं, तो ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब कुछ भी हो सकता है, अब दिल्ली दूर नहीं। अच्छा, दिल्ली दूर नहीं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के लिए मैं एक पैरेलल ड्रॉ करती हूं सर, जो आप सही से आप बता सकते हैं। फॉर एनी हिट मूवी यू हैव एन एंसेम्बल कास्ट, एक बड़ी कास्ट होती है लेकिन हीरो एक ही होता है। तो हीरो कौन है इस पिक्चर में? कि मैं आपको तो कह नहीं सकता हूं, आप तो आपको हीरो कह नहीं सकता हूं, मैं अपने आप को हीरो कह नहीं सकता हूं। हम लोग इस रेस में नहीं है फिलहाल, बट जो लोग रेस में हैं वो लोग अच्छे लोग हैं। अभी जीरो इन हो चुका है। अगर हम 2024 की बात करते हैं, पहले तो बात अभी की करनी चाहिए और अभी की सरकार की करनी चाहिए और बिहार की बेहतरी की करनी चाहिए और बिहार के विकास की करनी चाहिए। बहरहाल, अगर आप अभी भी नॉनदलेस अगर आप बात करिए 2024 की, तो मैं समझता हूं कि उसकी प्रिपरेशन जो है पहले शुरू होने से पहले इस पे शुरू होगी कि कौन लोग फोर फ्रंट में होंगे, फ्रंट रनर्स कौन है। आपने देख लिया, ममता बनर्जी तो खैर है ही, दो राय नहीं है, मगर साथ साथ आपने देखा कि नीतीश बाबू ने भी एकदम साबित करके दिखा दिया है, एक देश को जगा दिया है, जागृति पैदा कर दी है। और बाकी कुछ लोग हैं। अब अंतोगत्वा अल्टीमेटली दिस वुड बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड ऑफ कोर्स with the consent and approval of the opposition leaders and the opposition parties. But that's the problem. Every time this is attempted, every party wants to promote just their own leader. To make this work, आप कह रहे हैं दिल्ली दूर नहीं है, to make this work, doesn't everyone have to agree? Everyone has to agree. भाई, जब आप पहले बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, तो या इंदिरा गांधी जी आए थे, इंदिरा गांधी जी के बारे में पहले पार्लियामेंट में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था उनके बारे में। तो आखिर जब कंसेंसस, देश का इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। जब नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है तो बाकी सारे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट जो है साइड में हो जाते हैं। वक्त आएगा, आ रहा है, लोग अभी जीरो इन तो हो गया ना, जीरो इन हो गया। आप देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं सामने। अब पीपुल ऑफ द कंट्री विल डिसाइड, फेयर एनफ। हम और आप क्यों इतनी परेशान हो, इसके लिए करेंगे ना हम लोग, सब साथ हैं। और कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। जो ठीक कहा नीतीश बाबू ने, जो 14 में हो सकता है 24 में ना हो, 24 में जो रहेंगे शायद 34 में ना हो। ये तो जीवन का दस्तूर है, इसमें कौन सी बुरी बात है। ये राजनीति में ये बुरी बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है। शत्रुघ्न जी, आपके इतने सारे फैंस ये देखते होंगे और पॉलिटिक्स के साथ साथ आपका ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फिल्मी अनुभव भी रहा है, तो इस पूरे सिचुएशन को आप अपने फिल्मी अंदाज में
डायलॉग के साथ कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो हुआ है पिछले 24 घंटों में? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि बहुत जान बा बिहार में, बहुत जान बा। एकदम ऐसा हंगामा हो गई बा या कि एकदम सब कुछ देखते रह गया, लोगन के तोता उड़ गए या परखच्चे उड़ गए यहाँ पे। और नीतीश के बारे में तो यही कहूँगा, फिलहाल यही कहूँगा कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। Wow. Okay, so that was a dialogue from the shotgun. Thank you so much, sir, to speak with us.